Hello, dear students. I welcome you all once again to my class. All right, it's been a long time, all right, since the last class we have taken. Okay, in the last classes, we have discussed the various methods of production of charge and the properties of charge, like additive property, quantization of charge, and the invariance of charge, and all that we have discussed in the last class, previous classes. Okay. Today we will discuss Coulomb's law of electrostatics. Okay, why this Coulomb's law is important? हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? So the history of Coulomb's law goes back to 1785. All right. तो हमने देखा कि दो चार्जिंग बॉडीज whether they will attract each other or they may repel each other. Attraction और repulsion हो सकता है, जो कि हमें फिजिकली दिखता भी है. दो इक्वली चार्ज बॉडी को अगर हम पास लाए तो वो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं. अगर ऑपोजिटली चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये होता क्यों है? अगर कोई भी मोशन है देन इट मस्ट बी कनेक्टेड टू ए फोर्स. ऑलराइट, अगर दो चार्ज के बीच में कुछ एक्शन हम देख पाते हैं whether it is attraction or repulsion, then there must be a force, and that force was discovered by Coulomb. Okay, Charles Augustin Coulomb, he gave this law in 1785. तो what the concept is, तो हमें पता है कि एक फोर्स एक्ट करता है, बट उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें नहीं पता था. तो in Charles Augustin Coulomb in 1785, all right, he found out a formula for the magnitude and direction for force between two charges. all right, तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानने के लिए कुलम्ब्स एक फॉर्मूला दिए थे, जो कि टोटली रिजेंबल करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. जैसे the force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. all right, वैसे ही एक फॉर्मूला कुलम ने भी दिया. all right, and what was the formula? The electrostatic force of attraction or repulsion between two charges varies directly as the product of the magnitudes of the charges. इसका मतलब क्या है? F is directly proportional to the product of the two charges, product of magnitude of the two charges, and inversely proportional to the square of distance between their centers. Okay, and arcs along the line joining the two charges. all right, ये इतना बड़ा दिख रहा है ये जो सेंटेंस है, बट उसका मीनिंग अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या होगा? The force of attraction or repulsion F will be proportional to the product of the magnitudes of Q1 and Q2. A charge is a scalar quantity, we will say magnitude. all right, Q1 and Q2, and F is inversely proportional to R square. इसका मतलब क्या है? जितना डिस्टेंस बढ़ेगा दो चार्जेस के बीच, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता जाएगा. This is what Coulomb said. all right, combining these two, we'll get F is equal to K, some constant, K1, K2 over R square. all right, जैसे कि हम प्रोपोर्शनलिटी अगर ये साइन हटाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है ऑटोमेटिकली. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी whose value depends on the system of units chosen. in the system of units chosen, जैसे कि हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं. ओके, SI, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स एंड CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स. तो इन तीनों सिस्टम में ये K का वैल्यू अलग अलग होता है. all right, so for the timing, just remember that in SI system, the value of K is, the value of this constant is how much? 9 into 10 to the power 9. And look at this unit, Newton meter square over Coulomb square. देखो ये कैसे आया? See this K, all right? If I'll keep K over here and I will take all these quantities to left side. ठीक है, अगर K को रख के मैं ये सारे क्वांटिटीज को अगर लेफ्ट साइड ले आऊं तो क्या बच जाएगा बताओ? फोर्स का तो न्यूटन होता है और ये दोनों चार्जेस का है कूलम्ब स्क्वायर. ये डिवाइड हो जाएंगे लाइक दिस. ओके, और ये है आर, डिस्टेंस का स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम्ब स्क्वायर. और मैथमेटिकली इसका वैल्यू है 1 over 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught, and this epsilon naught is called the permittivity of free space. permittivity of free space. इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे आगे इसी वीडियो में. all right, और इसका वैल्यू कितना होता है फॉर फ्री स्पेस और एयर? इट इज हाउ मच?
8.854 into 10 to the power minus 12. Look at this unit again, Coulomb square over Newton meter square. तो इसका ऑपोजिट है, k का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो है कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, सो ये परमिटिविटी का जस्ट अभी के लिए इसको थोड़ा जस्ट याद रखो. ऑलराइट, परमिटिविटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे. इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड परमिशन, आई विल एक्सप्लेन लेटर व्हाट इट इज. ऑलराइट, सो क्या देखे हमने, द कूलम्स force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of distance between their centers. Okay, as you can see in this figure also, two charges. Okay, and look at what does this arrow indicate. all right, इसका मतलब है कि ये इसको रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है, ये भी इसको रिपेल कर सकता है या फिर अट्रैक्ट कर सकता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट we'll see. Now see, we have already got what is Coulomb's law, and in this slide we will see what is the what is the format of the Coulomb's law in different units. All right, in SI system we know that the value of K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. All right, 1 by 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of free space. Okay, permittivity of free space. Okay, permittivity के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ये जो क्वांटिटी है ये डिफाइन करता है कि एक मीडियम में कूलम्स फोर्स कितना होगा, or how a medium will get electrified. Okay, that depends on this permittivity. All right, so in SI system K is equal to 9 into 10 to the power 9. Okay, 1 over 4 by epsilon naught. So Coulomb's force अभी क्या बन जाएगा कि instead of K हम कितना पुट करेंगे, 1 by 4 by epsilon naught. So 1 by 4 by epsilon naught Q1 Q2 over R square. So this is an SI system of units. All right, in CGS ESU remember this, K is equal to 1. So इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, F is equal to Q1 Q2 over R square. All right, and in CGS EMU system K is equal to 1 over C, where C is the speed of light. Speed of light in free space, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So अभी जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, F is equal to 1 over C Q1 Q2 over R square. So हमने देखा this is the format of Coulomb's force in different systems of units, right? अच्छा, तो अभी हम 1 कूलम को इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि 1 कूलम किसे कहते हैं हम, द चार्ज ऑफ 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons is equal to 1 कूलम. बट 1 कूलम का एक और डेफिनेशन हम यहाँ देखेंगे. अच्छा, थोड़ा ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा F is equal to K Q1 Q2 over R square, इसको थोड़ा ध्यान से देखो. सपोज मैं दो चार्ज लूंगा जिसका वैल्यू एक एक कूलम है, Q1 भी एक कूलम है और Q2 भी एक कूलम है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है सपोज वो 1 मीटर है. ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा देखो, तो मैंने यहाँ पे अगर फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया F is equal to 1 over 4 by epsilon naught Q1 Q2 over R square. इंस्टेड ऑफ Q1 में पुट करूंगा 1, इंस्टेड ऑफ Q2 भी मैं पुट करूंगा 1. So what is the force of attraction or repulsion between the two charges? That will be 9 into 10 to the power 9 Newton. Okay, तो अभी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो जब हमने दो चार्ज लिए, ओके, दोनों को अगर हम 1 मीटर डिस्टेंस में रखेंगे, ठीक है, तो उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होगा, 9 into 10 to the power 9. All right, so we can define 1 coulomb in a different way now. All right, it means that 1 coulomb is the amount of charge which when placed 1 meter apart from a similar charge repels the other with a force of 9 into 10 to the power 9. We may say the same thing for attraction as well. All right, so 1 coulomb charge कितना होता है, अगर हम एक और सिमिलर चार्ज को रखेंगे 1 मीटर दूरी पे, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. ऑलराइट, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, एज फोर्स इज ए वेक्टर, तो कूलम्ब्स फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर। अगर वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन भी डेफिनेटली होगा। तो क्या डायरेक्शन होगा ये हम देखेंगे, ठीक है। देखो, the Coulomb's force acts along the line joining the two charges. The Coulomb's force acts along the line joining the two charges. और this line, ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए एक वर्ड है, इसको हम कहते हैं Coulomb's law एक सेंट्रल फोर्स है। Coulomb's law इज ए सेंट्रल फोर्स। और ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि अगर कोई फोर्स एक ही पॉइंट को के लिए डायरेक्टेड है, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, द ऑब्जेक्ट इज एट ईच पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो जो फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डायरेक्टेड होता है उसे कहते हैं सेंट्रल फोर्स। सिमिलरली, द कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। इसका चार्ज इस पॉइंट के लिए डायरेक्टेड होता है और इसके ऊपर जो फोर्स है वो इस पॉइंट में डायरेक्टेड होता है, इसीलिए कूलम्ब्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ऑलराइट, एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इस लाइन पे वो एक्ट करता है, ठीक है। और ये ग्राफ थोड़ा देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, दो चार्जेस हमने लिए हैं Q1 एंड Q2, बोथ आर पॉजिटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है, मैं अगर तुम्हें पूछूं कि ये एक चार्ज है Q1, ये चार्ज Q2, दोनों पॉजिटिव है, तो अगर मैं पूछूं Q2 के ऊपर किस तरह का फोर्स अप्लाई होगा Q1 के वजह से, ओके, Q1 Q2 के ऊपर किस तरह का फोर्स अप्लाई करेगा, because the charges are same, definitely the force will be repulsive. All right, अगर रिपल्सन होगा तो अगर ये फोर्स रिपल्सन है तो वो कहाँ जाएगा, दिस फोर्स विल बी F21 एंड इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम B। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। F21 stands for the charge on the second, the force on the second charge because of the first charge। F21, the force on the second charge because the first charge is equal to some constant K, Q1 Q2 over R square, and N cap. Why we have given N cap here? It is a vector away from B. All right, it is directed away from B। और रिमेंबर स्टूडेंट, इन दिस स्लाइड ये जो बोल्ड लेटर में जो हमने लिखा है ये सब वेक्टर्स है, ठीक है। सो बोल्ड लेटर ये F है, सो वेक्टर F is equal to K Q1 Q2 over R square and N cap। N cap is the unit vector away from B। ऑलराइट, सिमिलरली अगर B के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो A के ऊपर भी फोर्स डेफिनेटली अप्लाई होगा। वो कौन अप्लाई कर रहा है, वो B कर रहा है, ठीक है, एंड B is applying that force, एंड इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये भी रिपेल करेगा इसको, and suppose this is the direction, it will move away from A। all right, so this is F12 मतलब force on the first charge because of the second charge, and vector F12 is equal to K Q1 Q2 over R square and cap, and it is away from A। all right, now the Coulomb's force becomes, all right, इसको अगर थोड़ा हम और वेक्टर में लिखें तो कैसे होगा, देखो, वेक्टर F is equal to 1 over 4 by epsilon naught Q1 Q2 R2 minus R1 square n cap। इसको थोड़ा समझो अच्छे से, देखो बेटा, यहाँ पे एक ट्राइंगल हम देख रहे हैं, ठीक है। ए, सपोज इस सेंटर को अगर हम O कहेंगे, AOB इज अ ट्राइंगल, और अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसका Q1 का पोजीशन वेक्टर है R, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। तो AB का वैल्यू क्या होगा, अगर हम इसको R कहें, R विल बी क्या होगा, R2 माइनस R1, ठीक है, ये है वेक्टर R। तो जो हम यहाँ तक R लिखते आए हैं, अभी हम उसको क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 दोनों सेम ही है। ऑलराइट, ये n कैप हो गया। अगर मैं इसको R में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, R डिवाइडेड बाय R, वेक्टर R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R अगर यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई हो जाए तो अभी ये बन जाएगा R2 माइनस R1 RQ। ओके, सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जो हमने एक सिंप्लीफाइड देखे थे लास्ट स्लाइड में। ये थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर ठीक है, वेक्टर एज इट इज ए फोर्स, वी मस्ट एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। ऑलराइट, सो ये वेक्टर फॉर्म हमने क्या देखा, वी सो दैट F21 is equal to F12, the magnitude of vector
vector F21 is equal to the magnitude of vector 1 2, but directions opposite हैं. क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है. बोथ चार्जेस अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर. ओके, तो वेक्टर फॉर्मूला से हमें क्या पता चला कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते हैं, बट उन दोनों फोर्स का डायरेक्शंस ऑपोजिट रहते हैं. ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा देखते हैं, इसका डायरेक्शंस कैसे कैसे होता है कूलम्ब्स लॉ का. ठीक है, अच्छा ये डायग्राम थोड़ा देखो ध्यान से. ऑलराइट, हमने यहाँ पे लिए हैं लाइक चार्जेस, मतलब we have taken two positive charges and here two negative charges. ओके, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो ऑब्वियसली. ठीक है, और वेन एवर इज यूज्ड सिंबलिकली, कभी कभी ये लिखा जाता है लाइक चार्ज और डिसलाइक चार्ज, ऐसे लिखा नहीं जाता. Q1 Q2, यहाँ पे ST लिखा है, we may take 1 2 as well, no problem. Alright, तो Q1 Q2 is greater than 0, it मतलब the charges are similar. Here हमने देख रहे हैं कि QS and QT is less than 0, it means the charges are opposite. Alright, तो इसमें क्या होता है देखो थोड़ा, ये दोनों के बीच जो वेक्टर है, जो डिस्टेंस वाला वेक्टर है, सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि Q2 की ये वाले चार्ज के ऊपर इसके वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? एज द चार्जेस आर सिमिलर दे विल repel each other, the force will be in this direction and the distance vector is always from the first charge to the second charge. Similarly, if I'll take two negative charges also, the same thing will happen. Okay, the force and the distance vector will be in same direction. बट यहाँ पे क्या होता है देखो, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. देखें ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं. हमने दो डिसिमिलर चार्ज लिए हैं, पहला चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव. इसका जो डिस्टेंस वेक्टर है ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बट ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली. तो अट्रैक्ट जब करता है, द फोर्स कम्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और द डायरेक्शन देखो कैसा है फोर्स का, इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली यहाँ भी कैसा है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये है हमारा कूलम्ब्स फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. ओके, अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपेल करेंगे. ठीक है, और फोर्स होगा अवे फ्रॉम द चार्जेस. अगर दोनों चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा. इज दैट क्लियर? और ये जैसे कि हमने फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए ये हम यूज किए हैं, तो फोर्स विल बी डायरेक्टेड ओके इन दिस वे. और ये हम दिखा रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर कैसे ऑपोजिट होता है. द पोजीशन वेक्टर R21 will be from A to B and the position vector R12 from B to A. Alright, so this is a total diagrammatical representation of the various directions of Coulomb's force. Next we will see what is the relevance of vector form. Okay, इसका importance क्या है? वेक्टर फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है. लाइक F21 इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ F12. नेगेटिव साइन क्यों यूज किए हैं? बिकॉज द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. ऑलराइट, और इक्वल साइन क्यों यूज किए हैं? मैग्नीट्यूड सेम है. ओके, द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, दे फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है. ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और क्या पता चलता है हमें? एज द फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, सो दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस. ओके, जैसे कि मैंने पहले थोड़ा बताया था सेंट्रल फोर्स के बारे में. सेंट्रल फोर्स क्या होता है? इफ अ फोर्स इज डायरेक्टेड towards a particular point, then the force is called a central force. और कूलम्ब्स फोर्स हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है. जैसे कि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो जो भी कोई फोर्स हो, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है और थ्रू ए पर्टिकुलर लाइन अगर एक्ट करता है, उसको कहते हैं हम सेंट्रल फोर्स. सो वेक्टर फॉर्म में से हमने ये दो चीजें पता चला कि द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड कूलम्ब्स फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट विल सी व्हाट इज द रेंज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, मतलब कितने दूरी तक ये एक्ट कर सकता है. It has a very long range as large as 10 to the power 18 meter from nuclear dimensions. इसका मतलब क्या है देखो, कूलम्ब्स फोर्स न्यूक्लियस के अंदर काम नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होते हैं.
तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर डायमेंशंस। एक न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो वहां से लेकर कितना दूरी तक, अप टू 10⁻18 मीटर तक कूलम्ब्स फोर्स एक्ट करता है। ऑलराइट, बट इससे अगर कम डिस्टेंस लोगे तो कूलम्ब्स फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये एक लिमिटेशन भी है इसका। ऑलराइट, नाउ सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, लिमिटेशन क्या है देखो, द चार्जेस मस्ट बी स्टैटिक। Okay, Coulomb's law is always, or it is only valid for static charges or charges at rest, and it is only applicable to point charges। सिर्फ point charge ही हम इसको के लिए ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस लाइक ए कंडक्टर, ओके, इसके लिए हम Coulomb's law यूज नहीं कर सकते। ये भी एक इसका लिमिटेशन है। एक और मेन लिमिटेशन है, इट इज ओनली वैलिड फॉर डिस्टेंसेस ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। ओके, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और इसको 1 फर्मी कहते हैं। ऑलराइट, बिकॉज इनसाइड न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स वर्क्स। ओके, और न्यूक्लियर फोर्स कैसे एक्ट करता है देखो, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन रहते हैं या फिर 2 न्यूट्रॉन रहते हैं या फिर बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं। क्योंकि दोनों प्रोटॉन का चार्ज सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए वहां पे हम कह सकते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स वहां पे नहीं है। कूलम्ब्स फोर्स अगर होता तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देते और न्यूक्लियस ब्लास्ट हो जाता या फिर एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता न्यूक्लियस का। बट कूलम्ब्स फोर्स वहां एक्ट नहीं करता, वहां पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, द बोथ चार्जेस टू बी एट रेस्ट, एंड द बोथ चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, एंड it cannot act distances less than the nuclear dimension. Inside the nucleus, Coulomb's force does not act. Okay, now the most important concept of today's video, all right, जो हम permittivity के बात कर रहे थे, एप्सिलॉन। ओके, जो एप्सिलॉन एक सिंबल था, हमने पहले स्लाइड में देखा था, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ये परमिटिविटी होता क्या है देखो, जैसे कि इसका जो वर्ड है परमिटिविटी, इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड कॉल्ड परमिशन। ऑल राइट, तो एक मीडियम अगर हम लेंगे, वो कितना इलेक्ट्रिफाइड होगा। इलेक्ट्रिफाइड मतलब क्या है, उसमें कूलम्ब्स फोर्स कितना एक्ट करेगा, वो स्ट्रांगली एक्ट करेगा या फिर धीरे एक्ट करेगा, वो किस तरह अट्रैक्ट करेगा। ओके, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। और ये जो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है कि कैसे कूलम्ब्स फोर्स एक्ट करेगा एक मीडियम में, कितना, किस हद तक वो एक्ट करेगा, टिल विच एक्सटेंट कूलम्ब्स फोर्स विल एक्ट इन ए मीडियम, उस जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ओके, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दिया है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम। ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ये वाला क्वांटिटी हमें डिसाइड करके देता है परमिटिविटी। ओके, इसका सिंबल देखिए एप्सिलॉन। ऑलराइट, और हमें जैसे कि पता था कि जो फ्री स्पेस होता है, एयर होता है, ओके, उसका वैल्यू कितना है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। ओके, जैसे कि हम कूलम्ब्स लॉ में हम यूज करते हैं इसको। और ये कैसा है देखो, 1/4πε0 Q1Q2/r², जैसे कि हम कूलम्ब्स फोर्स हमें पता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 2 चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं। ठीक है, और 2 चार्जेस Q1 Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम। पहले मैंने 2 चार्ज लिया जो कि वैक्यूम में है कुछ डिस्टेंस में, उन दोनों के बीच कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा, F vacuum is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब क्या करूंगा मैं, और ये एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने वैक्यूम में रखा है। ठीक है, सपोज मैं कोई दूसरा मीडियम लूंगा जिसके लिए कि ये जो परमिटिविटी है वो सपोज एप्सिलॉन है। ठीक है, कोई अलग सा मीडियम, तो इस मीडियम में फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ऑब्वियसली सपोज ये दोनों को मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर दिया है। अभी सपोज मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, what will you get, force in vacuum divided by force in medium, and what kind of force it is, the Coulomb's force in vacuum divided by the Coulomb's force in that medium
will be equal to how much? देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एज दीज आर इन डिनोमिनेटर, ये यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर में, तो जब डिवाइड करेंगे ये बदल जाएंगे, तो ये ऊपर आ गया मीडियम का परमिटिविटी, नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट और हमारा फ्री स्पेस का परमिटिविटी. सो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिसिटी में. ओके, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. ऑलराइट, इन दोनों को हम K भी कह सकते हैं. K इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट एफ वैक्यूम बाय एफ मीडियम. ओके, और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या बन जाएगा? द फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू द K टाइम्स. ओके, K means the dielectric constant, और ये क्वांटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और ये क्वांटिटी क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम व्हेन कंपेयर्ड विद द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. ऑलराइट, दिस विल बी K. तो F वैक्यूम इज इक्वल टू K टाइम्स F मीडियम. इसका थोड़ा मीनिंग समझो. अभी जो हमने लिखा है यहाँ पे F वैक्यूम इज इक्वल टू K टाइम्स F मीडियम, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि फोर्स जितना वैक्यूम में होता है, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन टू मीडियम, ऑलराइट, वो कितना होगा? K टाइम्स द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन दैट मीडियम. ठीक है, और थोड़ा अच्छे से समझाते हैं. पहले आप ये वैल्यू सब देख लो. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल टू 80. Dielectric constant for vacuum is 1 because epsilon naught by epsilon is equal to 1. Dielectric constant for air is equal to nearly 1 equal to 5. This much is the value. And mica, for mica it is how much? 3 to 6. 3 to 6 in case के बीच में ये रहता है. और for glass it is how much? 5 to 10. Alright. इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, सपोज दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा है. ठीक है, सपोज कुछ फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को. अभी सपोज वही चार्ज को मैं ले जाऊंगा वाटर को, पानी में रख दूंगा सेम डिस्टेंस में, तब क्या हो जाएगा पता है? द फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 80 टाइम्स. ओके, द फोर्स विल नाउ बिकम द फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80. इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं ग्लास में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 5 to 10, जो भी उसका वैल्यू होगा. ठीक है, तो क्या होता है? जो कूलम्ब्स फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है हमारा एयर में और फ्री स्पेस में. और जैसे कि हम कुछ और सब्सटेंस लेते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होता है, और ऑलवेज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 1, वो कभी नेगेटिव नहीं होता. ऑलराइट, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? कि दो चार्जेस के बीच जो कूलम्ब्स फोर्स रहता है, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम में. और कहीं और कोई भी मीडियम, अदर मीडियम में उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ऑलराइट, सो जिसका वैल्यू जितना होगा वो हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला वैल्यू को. ऑलराइट, so at the end is some numericals I have given. All right, some numericals you can see that. Okay, थोड़ा ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं. The first one is, what will be the ratio of the Coulomb's force explained by two charges separated by a certain distance if one of them is half the other? Okay, तो इसमें एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि कितना भी मैग्नीट्यूड हो चार्जेस का, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम ही चार्ज, सेम ही फोर्स अप्लाई करते हैं. क्योंकि फोर्स का जो डेफिनेशन है, फोर्स का जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 by R², तो दोनों रहते हैं उस फॉर्मूला में और मल्टीप्लाई होकर रहते हैं. तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा दोनों में. तो द रेशियो विल बी 1:1 ऑब्वियसली. तो इसको, ये सब प्रॉब्लम्स को आपको कैलकुलेट करके मुझे सबमिट करना है. ऑलराइट.